Okay, good afternoon, everyone. I, Dr. Sudhakaran, uh, uh, coordinator of today, this one of the guest lecture. Welcome you all. As we know that IIT Innovation Institute of Innovation Council, under the domain of a uh, IMT College of Law, we are organizing a series of events to inculcate the strict among the youth, the spirit of research, innovation, and entrepreneurship. Today, we have uh, our senior advocate Rakesh Kumarji, who is an advocate record in Supreme Court of India and the founder of DSN Legal Firm, New Delhi, who deals in a civil, criminal, arbitration, and intellectual property rights. Advocate Rakesh Kumarji has joined the bar in the year 2000, and initially he has started from T. Sajari Court. Later on, within 3 years, became the independent practice in a Delhi High Court and handle the matters independently in T. Sajari High Court and the Supreme Court. And within span of 9 years, in 2009, he has rose to the advocate on record. So from 2009 to till date, he is handling the matter in 3 layers of the court in Delhi, Punjab, Haryana, and some of the cases he has argued, just like a fodder stamp case, Jamia Reservation Minority Institution case, Jat Reservation, Uttar Pradesh Apartment Act. So, in addition to this, he has appeared before the National Company Law Board, National Consumer Redressal Commission, etc. So, now I will give my mic to the Rakesh sir for his golden words. Yes, good afternoon. Good afternoon, everybody. So far as this topic is concerned, I have been given topic to speak upon business law. First thing I would like from you, anyone can let me know if anybody has any query in between, they can also ask query. But I have framed my lecture according to the convenience. So how to understand the subject. And I have framed it according to just to make you understand, considering that you are a student of law and you have not yet entered into practice. So you might be interested in knowing that when you will come for practicing law, how to help an entrepreneur in establishing his business, managing his business, and growing his business. So far as law is concerned, we have to understand that business law is not any specified subject of law. Business law is a general term which is used for general law which relates and which are used in course of a business, right from establishment of business till resolution of an entity which has been established for conducting and carrying on business. So let me make you understand. आप जिस लैंग्वेज में कन्वीनियंट हो, इफ यू आर कन्वीनियंट इन इंग्लिश आई विल कंटिन्यू इन इंग्लिश, और इफ यू आर कन्वीनियंट इन हिंदी लेट मी नो दैट आई शुड मिक्स इट हिंदी एंड इंग्लिश आल्सो. Otherwise I will tell you that what are the aspects in the language which is convenient to me. So far as business law is concerned, you can understand various components of business law. First is law. There is a group of law, various legislation which deals with establishment of an entity.
बिजनेस कैनॉट बी, बिजनेस करने के लिए आपको कोई एंटिटी, डिफरेंट तरह के एंटिटी की जरूरत होती है। कोई ना कोई पर्सनालिटी आप क्रिएट करेंगे, पर्सन क्रिएट करेंगे। लॉ में एक तो नेचुरल पर्सन होता होगा, जो लॉ होता है, जो आपको लॉ में पढ़ाया जाता है कि नेचुरल कोई इंडिविजुअल है, वो आके कोई बिजनेस शुरू कर दिया, दुकान खोल दी या किसी ट्रेडिंग में इन्वॉल्व हो गया और वो बिजनेस करते रहा अपने नाम से। तो एक तो तरीका वो होता है बिजनेस करने का। दूसरा होता है कि बहुत सारे लीगल एंटिटी बना के आप, डिफरेंट लीगल एंटिटी बना के आप बिजनेस करना शुरू करते हैं। पर्टिकुलरली लार्ज स्केल पे जब आपको बिजनेस करना होता है तो देन यू हैव टू एस्टैब्लिश ए लीगल एंटिटी व्हिच विल हेल्प यू in gaining funds for your legal entity and carrying on business also. So पहला एस्पेक्ट बिजनेस लॉ का ये होता है कि आपको समझना होगा कि बिजनेस एंटिटीज कैसे हैं। तो पहले फेज में मैं ये बताऊंगा शॉर्टली कि बिजनेस एंटिटी कितने तरह के होते हैं, उनको एस्टैब्लिश कैसे किया जाता है, उनको रन कैसे किया जाता है और अल्टीमेटली जरूरत पड़ने पे उसको डिसॉल्व कैसे करते हैं। सेकेंड है कि बिजनेस एंटिटी के साथ बिजनेस की आइडेंटिटी क्या होगी। बिजनेस, जब आपने बिजनेस एंटिटी एस्टैब्लिश कर दिया, कोई आदमी, जैसे मान लीजिए कि कोई इंडिविजुअल है, वो बर्थ के टाइम पे उसकी एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी बहुत एस्टैब्लिश नहीं होती। इन कोर्स ऑफ टाइम में जब वो काम करता है तो कोई प्रोफेसर बनता है, कोई बिजनेसमैन बनता है, कोई पॉलिटिशियन बनता है, तो धीरे धीरे उसकी आइडेंटिटी एस्टैब्लिश होती है और आइडेंटिटी एस्टैब्लिशमेंट उसके नेचर ऑफ वर्क पे डिपेंड करता है कि कैसा वो प्रोफेशन अडॉप्ट करता है, कैसा वो काम करता है। तो ये इन एस्पेक्ट्स को समझने का है दूसरा एस्पेक्ट बिजनेस लॉ का, कि पहला हो गया बिजनेस एंटिटी किस तरह से एस्टैब्लिश होता है और क्या होता है। सेकंड की बिजनेस की आइडेंटिटी क्या होती है। फिर थर्ड एस्पेक्ट होता है बिजनेस प्रॉपर्टी। कोई एंटिटी है, उसके पास कोई प्रॉपर्टी होगी। अब प्रॉपर्टी भी कई तरह की होती है। पहला, बहुत सारे प्रॉपर्टी के डिस्क्रिप्शन मैं बाद में दूंगा, कि मैं वेरियस एस्पेक्ट बता रहा हूँ कि बिजनेस लॉ के वेरियस एस्पेक्ट क्या है। फिर उसके थर्ड एस्पेक्ट हो गया उसके वर्कफोर्स। कोई भी आदमी या कोई भी एंटिटी जब बिजनेस करने जाएगा तो उसके पास बिजनेस करने के लिए, ऐसा तो है नहीं कि केवल मशीन कंप्यूटर से ही बिजनेस होगा, उसके लिए इंडिविजुअल होंगे। तो इंडिविजुअल और बिजनेस एंटिटी के बीच रिलेशंस, इंडिविजुअल के बीच रिलेशंस को डील करने से रिलेटेड एक लॉ, लीगल बैच ऑफ लॉ है। बहुत सारे लेजिस्लेशन है उस एस्पेक्ट को डील करते हैं, वो भी आपको समझना होगा। और फोर्थ है कि आप जब बिजनेस कंडक्ट करते हैं तो आपको बिजनेस कंडक्ट करते समय बहुत सारे बिजनेस रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हैं, बहुत सारे करने पड़ते हैं। चाहे आप मान लीजिए कि आप बिजनेस करने के लिए कोई रॉ मटेरियल प्रिक्योर करते हैं, तो किसी के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, कॉन्ट्रैक्ट जैसे ही किसी थर्ड पार्टी से प्रिक्योरमेंट के लिए करते हैं या अदरवाइज किसी तरह से करते हैं, आप सर्विस सप्लाई करने के लिए करते हैं, तो एक बिजनेस रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होता है। बिजनेस रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश जब होता है तो उससे रिलेटेड और उस रिलेशनशिप में डिस्प्यूट भी हो सकता है, तो उन चीजों को डील करने के लिए एक बैच ऑफ लॉ है, वो फोर्थ एस्पेक्ट है बिजनेस। तो ये चार मेजर एस्पेक्ट्स को ध्यान में रख के आप लोगों को बिजनेस लॉ समझना होगा। ठीक है, मैं अब शुरुआत करता हूँ फर्स्ट एस्पेक्ट से कि बिजनेस एंटिटी कितने तरह के होते हैं। बीच में यदि किसी को कोई क्वेश्चन हो, कोई बात हो, तो आप बीच में भी बोल सकते हो, ताकि उससे मुझे समझ में आएगा क्योंकि कि कोई आदमी इसको समझ रहा है, उसे कोई दिक्कत हो रही है या नहीं। ठीक है, बिजनेस एंटिटी बेसिकली चार, इंडियन लॉ के हिसाब से जाएंगे तो आप बिजनेस करने के लिए जो एंटिटी बनाएंगे, जो आदमी बिजनेस करेगा, वो चार तरह का होगा। पहला तो कोई इंडिविजुअल नेचुरल पर्सन है, वो अपने आप काम करना शुरू करता है, वो अपने नाम से बिजनेस शुरू कर देता है और ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग जो भी कर रहा है, तो सपोज किसी को श्री राम एंड सन्स के नाम से करता है, तो वो अपना एक बिजनेस एंटिटी अपना एस्टैब्लिश करके अपने नाम से प्रोप्राइटरी फर्म बना लेता है, उस नाम से काम कर लेता है। उसके लिए कोई बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं होती है, एज ए प्रोप्राइटर वो काम करना शुरू कर देता है।
तो इसमें कोई बहुत आज के डेट में कोई लॉ इसको रेगुलेट करने और इसको गवर्न करने, इसका सर्टिफिकेशंस के लिए कोई खास कोई लॉ नहीं है। जनरली शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट में इस तरह का रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के लिए रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, तो उससे एक डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट हो जाता है जिससे इंडिविजुअल का रिकॉग्निशन एज ए बिजनेस एंटिटी हो जाता है। तो ये एक एंटिटी है बिजनेस करने का, जो इंडिविजुअल विदाउट एस्टैब्लिशिंग एनी थर्ड लीगल एंटिटी अपने आप से बिजनेस शुरू कर देता है और कंटिन्यू करता है। सेकंड एंटिटी है वो पार्टनरशिप फर्म है। पार्टनरशिप फर्म जो लॉ के स्टूडेंट फाइनल स्टेज तक आए होंगे, जिन्होंने पार्टनरशिप एक्ट पढ़ा होगा, उनको थोड़ा बहुत इस चीज के बारे में जानकारी होगी कि पार्टनरशिप के लिए क्या है, दो या दो से ज्यादा इंडिविजुअल मिलके एक बिजनेस रिलेशनशिप फॉर पर्पस ऑफ कैरिंग ऑन बिजनेस एस्टैब्लिश करते हैं, वो पार्टनरशिप फर्म होता है। लेकिन पार्टनरशिप का जो स्टेटस होता है वो इंडिविजुअल और पार्टनर्स के बीच डिफरेंट, पार्टनरशिप फर्म और पार्टनरशिप डिफरेंट नहीं होते, वो दोनों है, लेकिन ज्वाइंट आइडेंटिटी के थ्रू एक थर्ड आइडेंटिटी क्रिएट करते हैं जो कि सेपरेट उनसे नहीं होता। तो पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म और प्रोप्राइटरशिप फर्म में नेचुरल एंटिटी एग्जिस्टेंस में रहती है और उसी नेचर। हेलो Sudhakaran? Yes, sir. Your voice is visible. Okay. So when it is not audible, let me know, because online things we are not very used to. We are used to court proceedings, so judges used to interact with us, so we used to know that it is going smoothly. But here, since everybody is silent, so there used to be some issue. So far as partnership and proprietorship are concerned, those are natural entity, individual से उनका कोई existence अलग नहीं होता है। एक थर्ड कैटेगरी जो होता है बिजनेस एंटिटी का, वो एलएलपी है। एलएलपी का इंडिया में जो कॉन्सेप्ट है इंट्रोड्यूस हुआ इन लीगल फॉर्म लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 के बाद। तो 2008 के बाद एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट आया, जहां दो या दो से अधिक लोग बनके पार्टनरशिप करते हैं। लेकिन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप और पार्टनरशिप में डिफरेंस क्या है कि पार्टनरशिप में इंडिविजुअल और पार्टनरशिप फर्म के बीच आइडेंटिटी का कोई डिफरेंस नहीं होता, दोनों सेम ही लोग होते हैं। लेकिन एलएलपी और पार्टनरशिप, जब एलएलपी एग्जिस्टेंस में आता है तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप यूज्ड टू बी ए सेपरेट लीगल पर्सनालिटी। उसका अलग से इनकम टैक्स रिटर्न आपको फाइल करना पड़ेगा, उसका अपना इनकम होगा, अपने सारे उसके बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस होंगे, जो पार्टनर्स उनके होंगे उनका जो उनको रिटर्न मिलेगा वो उनका इंडिविजुअल इनकम होगा। जबकि पार्टनरशिप फर्म में ऐसा नहीं होता। उसी तरह से फोर्थ आइडेंटिटी जो लीगल एंटिटी है वो कंपनीज है। एक कंपनी के सारे डिफरेंस पार्टनरशिप, आपको ये समझना होगा कि पार्टनरशिप और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में डिफरेंस है कि पार्टनरशिप फर्म is not different from the individual partners, they are the same person, they have just understanding how to distribute the profit of the business. Limited liability partnership is a kind of partnership where a third person come into existence, which is limited liability partnership firm, which has its own identity, its own business, its own income, and what individual partners get, those are in form of the income of individual income of the partners. And जो थर्ड कैटेगरी है कंपनी और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में एक सिमिलरिटी है कि कंपनी और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप दोनों की जो आइडेंटिटी है इनके प्रमोटर्स से डिफरेंट होती है। प्रमोटर से कंपनी भी डिफरेंट होता है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। लेकिन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का जो स्ट्रक्चर है और कंपनी का स्ट्रक्चर है उसमें डिफरेंस ये होता है कि कंपनी के सारे स्टेक उसके शेयर होल्डिंग में डिवाइडेड होते हैं। जो उसके शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी सारे कैपिटल और स्ट्रेंथ इन द कंपनी और कंट्रीब्यूशन और
control over the company is divided into is in consonance with the shareholding a person has in the company. So if he has more than 51% shareholding in the company, he can control the management of the company, he can control the actions of the company. अब इनके रेगुलेशंस के बारे में समझना हो तो आपको यदि कोई बिजनेस करना होगा तो पहली चीज जो आपको डिसाइड करनी होगी कि आप ये 4 एंटिटीज में से किस एंटिटीज के थ्रू आप बिजनेस करना चाहते हैं। इसमें से एक सिलेक्शन करना होगा। ये डिपेंड करता है कि आप कितना रिस्क लेते हैं, आपके पास कितना एसेट्स है, किस लेवल का आप बिजनेस करने जा रहे हो और किस नेचर का बिजनेस करने जा रहे हो, कहां से आपको फाइनेंस जनरेट करना है, किसके साथ गुडविल किस तरह से एस्टैब्लिश करनी है। ये सारे एस्पेक्ट रख के आपको समझने के बाद एक डिसीजन लेना होगा कि मैं किस एंटिटी के थ्रू बिजनेस करूंगा। क्या एक पार्टनरशिप के थ्रू करूंगा, एलएलपी के थ्रू करना है या फिर हमें कंपनी बना के करना है। So it all depends upon the choice of the individual who is going to establish his business, with what entity he is going to. And when you take a decision, there are formalities. If you are taking a decision to do your business through partnership, then you have to execute a partnership deed. And the requirement, because some provisions of partnership says that when registration of partnership is not mandatory, but if you do not register a partnership, there is legal disability, because when there would be a need of suing or filing a case against third person or against your partner, then if your partnership is not registered with the registrar of partners, then you cannot sue. Your suit will not be maintainable. It will be dismissed on this very ground that it is not registered. Similarly, if you have taken a decision to go for a limited liability partnership, to do your business through a limited liability partnership, then you have to get it registered through registrar of companies only. Similarly, if you are going to have your business through company, then you have to get a company incorporated. So these are the basic details about how to what would be the entity and how the entity works and how the thing. So some information you should have about the legal entity, which will be legal or natural entity, which will be carrying on business for you. So I'm not going into details that how this business entity are incorporated, what are the process, what stake you should have, how to manage its things also. अब इसके बाद है बेसिकली कि बिजनेस एंटिटी आप चाहे इंडिविजुअल के थ्रू कर रहे हैं, चारों में से किसी मोड के थ्रू कर रहे हैं, तो देन यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट हाउ इट विल गेट इनकम एंड व्हाट वुड बी इट्स एसेट्स। बिजनेस के लिए आप बिजनेस लॉ में आप हर एस्पेक्ट को आपको ध्यान में रखना होगा कि बिजनेस करने के लिए फाइनेंस की जरूरत होती है। बिजनेस करने के लिए कैपिटल होने चाहिए, एसेट्स भी होने चाहिए। तो यदि आप इंडिविजुअल कर रहे हैं, प्रोप्राइटरशिप फर्म, तो आप पैसे यूज कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन यदि आप लीगल एंटिटी के थ्रू बिजनेस करना चाह रहे हैं या पार्टनरशिप के थ्रू करें, तो कंट्रीब्यूशन के रूप में आपको कुछ न कुछ इन्वेस्ट करना होगा, ताकि उस फर्म का, उस लीगल एंटिटी का या उस बिजनेस एंटिटी का एक कैपिटल जनरेट हो। उसका कैपिटल में जैसे मान लीजिए पार्टनरशिप में है तो पार्टनर्स के कंट्रीब्यूशंस होते हैं, एलएलपी में होते हैं तो पार्टनर्स के कंट्रीब्यूशंस होते हैं, जो इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है। उसी तरह से शेयर यदि आप कंपनी बनाने जाते हैं, देन यू हैव टू कंट्रीब्यूट इन फॉर्म ऑफ पेड अप कैपिटल। आप कंपनी के शेयर कैपिटल्स जो है वो ऑथराइज शेयर कैपिटल आपने आरओसी से ऑथराइजेशन एक लिमिट तक लिया, उसमें से जितने पैसे उसको शेयर बेचा किसी को, जो भी उसके शेयर स्टेक होल्डर आया, उसका एक प्राइस होता है, वो पे करेगा, वो दैट विल कम टू कंपनी एज ए कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो पेड अप कैपिटल के रूप में वो कैपिटल कंपनी का जनरेट होता है। उसी तरह से बिजनेस के आपको
जो एस्पेक्ट है, सेकंड एस्पेक्ट में बता रहा हूँ कि बिजनेस, यदि कोई बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस की प्रॉपर्टी क्या होगी, एंटिटी की प्रॉपर्टी क्या होगी। तो पहली प्रॉपर्टी में आपका हो गया कैपिटल, हो गया जो कैपिटल के रूप में कंपनी के पास आएगा। सेकेंड, उसके पास मूवेबल्स होंगे, एसेट्स होंगे, मूवेबल एसेट्स होंगे, प्लांट एंड मशीनरी होगी, बाद में कंपनी कोई प्रॉपर्टी खरीदती है तो वो एसेट्स होंगे। जो जो थर्ड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जो कंपनी के एसेट्स का जो बिजनेस के साथ ही आपको सोचना पड़ेगा, दैट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। पहला थिंग, बिजनेस में कैपिटल, एसेट्स एंड ऑल दीज थिंग्स should be there, but besides that you should develop another kind of property, that is intellectual property. Intellectual properties are also of different kind. One is directly pertaining to goodwill of the company, that is in form of trademark, trade name, its well knownness, you can say that it is well known trademark, then it has different values. Similarly, if a company is in the business entity is doing some research work, then any invention which it has made, then patent right, that is also an asset of the company. Similarly, यदि कोई डिजाइन बनाते हैं तो डिजाइन में इनका राइट होता है। कुछ मान लीजिए लिटरेरी वर्क में क्रिएट आ रहे हैं, कुछ जैसे कोई म्यूजिक कंपनी है, म्यूजिक कंपनी इफ इट इज गेटिंग a lot of music composed through it, then the company is having copyright on those music items, cinematographic items. So all these things are the assets of the company. So you have to understand that when company business entity is there, what nature of asset it can have. So conventional asset, you should understand that what would be conventional asset, that is the money it is having with itself, in form of whether it has come in form of capital investment or whether it has come from in form of profit of the company, profit of the business entity. Third is that while doing business, the company builds up its reputation and goodwill also. So similarly, trademark also becomes important and its name becomes important. So this also in course of time become an asset of the company, which has monetary value. If you go to do something, then and if you are trying to exit from the business, then your business may not be business entity may not be having other assets, but its trademark may worth. So somebody may be interested in purchasing your trademark for certain consideration. So that is also a kind of property which can be converted into monetary in terms of money also. So these are the assets of the company. अब जब एसेट्स को आप डील कर रहे हैं, कंपनी के एसेट्स को डील कर रहे हैं, तो देन यू शुड आप उसको प्रोक्योर करने का, एसेट्स क्रिएट करने का और एसेट्स से रिलेटेड चीजों के लॉ को भी आपको समझना होगा। टू बी ए कंप्लीट बिजनेस लॉयर, यू शुड नो ऑल दीज एस्पेक्ट्स, सो एसेट्स में क्या होता है, एक एसेट्स हो गया कि मान लीजिए कंपनी कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहती है, बिजनेस के ऑफिस को इस्टेब्लिश करने के लिए उनको कोई लैंड चाहिए जिसपे वो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर करना चाहते हैं, बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, ऑफिस बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे भी कई सारे लॉ का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। जैसे पहला लॉ का इन्वॉल्वमेंट होगा वो रियल एस्टेट से, कि लैंड को परचेज करने के लिए क्या है, कैसे एग्रीमेंट टू सेल ऑफ लैंड करें। फिर उसके ड्यू डिलिजेंस से रिलेटेड होता है कि जो प्रॉपर्टी कंपनी खरीदने जा रही है उस प्रॉपर्टी पे कोई डिस्प्यूट तो नहीं है, जिस पर्सन से खरीदने जा रहे हैं उसकी टाइटल उस कंपनी में परफेक्ट है, उस प्रॉपर्टी में परफेक्ट है कि नहीं। तो ये सारी चीजें एक लॉस को आपको इससे भी जानना पड़ेगा। देन इफ यू स्टार्ट कंस्ट्रक्टिंग suppose start constructing on that immovable property, then you have to enter into a contract with some person who will be doing it. And even if you are doing it yourself, if the business entity is doing it by itself, then it has to enter into different relationship with a different person for procurement of materials, for getting labor for construction, for architectural design, services of architecture. So all these aspects are connected with
with the things. And if a company is particularly in business of dealing with immovable property, then it is full place aspect which you should be aware of. So entire real estate law, that what are its implications when you are selling it to individuals, then what would be its consequences. So first thing is that legal entity, management of legal entity. Third is the assets of the legal entities, business entity I should say. अब उसके बाद जो बिजनेस लॉ में जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट आता है वो आता है कि आप बिजनेस करने के लिए आपको एम्प्लॉय चाहिए, वर्कफोर्स चाहिए। कोई भी बिजनेस करेंगे तो इनिशियली तो एक इंडिविजुअल, दो इंडिविजुअल कर लेगा, लेकिन बट इट कैन नॉट बी पॉसिबल विदाउट इंगेजिंग सर्विसेज ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज. So you will have to engage, take the services of valuable human resources, and when you take the services, different law pertaining to employment and labor comes into operation. So when you are hiring a person, it depends that how it will be governed. It all depends upon what level of person you are employed. Suppose you are having a company and you want someone who would be working as CEO of your company, chief executive officer of the company, and he is not one of the persons who are promoters or shareholders of the company, then you have to hire his services on contractual terms. So you have to enter into an employment contract with the person whose service you are going to take. So your business entity is going to. So how to draft that agreement? What aspect it has to be considered? All these should be known to you, and most of its aspects are covered by general aspects of law of contract only. So law of contract will operate in that. Suppose you are having services of some persons who are in managerial and supervisorial condition, who are not in management category. Suppose you are trying to employ some person who will be working for management of a group of employees. So you are hiring an HR manager. So then that will be a managerial category of a post for which you have to enter into employment agreement. So what terms that can be negotiated and that can be settled. And third, which one should be aware of, that is most important aspect in particularly in India while dealing with the workforces, is the workman category of employees. The workman category of employees as on date have different statutory protections, like protections under Industrial Dispute Act, protections against Employee State Insurance Act, and other similar work contract acts, and there are various other labor legislation which deals with employment and non-employment of workman category of employees. जैसे प्रोविडेंट फंड का हो गया, अदर चीजें हैं वो डिडक्ट करनी, वो तो सीनियर एम्प्लॉयज के लिए भी आपको डील करना पड़ेगा उस एस्पेक्ट को. बट सर्टेन कैटेगरी, पर्टिकुलरली इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट का एक मेजर एस्पेक्ट है, जहां पे 240 डेज का एम्प्लॉयमेंट आपने कंटिन्यू कर लिया इवन विदाउट सर्विसेज ऑफ द पर्सन, विदाउट terminating the services and without entering into an agreement, that person gets a right to not get his services terminated. उसको फिर terminate करने के लिए आपको so-called notice, disciplinary inquiry, right to be heard, all इसका compliance होना चाहिए, and there should be reason that why you are terminating his services. तो इस तरह से जैसे जनरली आप 100 से ज्यादा एम्प्लॉय रख रहे हैं तो स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट एक है, उसके अंदर आपको एक जनरल टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ वर्क फोर्सेस के लिए आप पे ऑपरेट करेगा. यदि आपने कोई अग्रीमेंट सेपरेटली इंटर भी किया हुआ है और उस पे टर्म्स अनफेवरेबल टू वर्कमैन है, तो जनरल स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट के अंदर जो मॉडल कॉन्ट्रैक्ट है उसके प्रोविजन सुपरसीड करेंगे.
तो इस तरह के इनके भी रेगुलेट करने के लिए एक जो लॉ है उसको आपको समझना पड़ेगा फॉर स्मूथली रनिंग द बिजनेस। तो इस एस्पेक्ट में एक और जो सबसे डिफिकल्ट एस्पेक्ट है फॉर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एम्प्लॉयमेंट और वर्कफोर्स मैनेजमेंट, वो यह है कि हाउ टू सपोज जो जनरली एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट इंटर करने में और एम्प्लॉयमेंट में रखने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती। कोई भी आदमी है, सपोज ऑफिस में आता है, एक ऑफिस बॉय आता है, आप उसको कल से कहा देते हो काम पे आ जाओ, तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज दैट पर्सन इज सीकिंग योर एम्प्लॉयमेंट, बट दैट पर्सन then he will be agreeing for whatever you are saying. But the thing is that when you are dispensing with his service, then there would be a lot of issues. If he has accrued right under the Industrial Dispute Act, then it would not be very easy to terminate his service without compliance of legal provisions and without giving him an opportunity to be heard and without doing disciplinary inquiry and all this. So these aspects you should understand also. जहाँ तक मैनेजरियल और मैनेजमेंट लेवल के एम्प्लॉय हैं, मैनेजरियल लेवल के एम्प्लॉय हैं, तो कन्वीनियंट एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट के बेसिस पे आप जो भी टर्म्स तैयार करते हो उसमें जो टर्मिनेशन के क्लॉजेज हैं उनको आप जिस तरह से इन्फोर्स करते हो तो इन्फोर्स कर सकते हैं। अब आता है बेसिकली आपका, फिर आप बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट हो गया, बिजनेस एसेट्स हो गया, बिजनेस फिर वर्क फोर्स हो गया, ये तीनों एस्पेक्ट आपके कंप्लीट हो गए तो आपके एक बिजनेस एंटिटी एस्टैब्लिश हो गई, काम में कर रही है। अब आता है बिजनेस करने का तरीका, कि उससे रिलेटेड जब आप बिजनेस करेंगे तो बहुत सारे लॉ आपको रेगुलेट कर उसमें पिक्चर में आएंगे। सबसे बेसिक उसमें लॉ जो है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, जो हर जगह आपको अप्लाई करेगा, इवन वेयर देयर इज नो रिटन कॉन्ट्रैक्ट। आप कोई सामान खरीदने रहे हैं, कोई प्रिक्योरमेंट कर रहे हैं, कोई ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, कोई बिल इशू कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट लॉ का अंडरस्टैंडिंग होगी। या आपने कोई ऑर्डर प्लेस किया किसी कारण से, सपोज पेंडेमिक आया, अभी अब पेंडेमिक आया, बहुत सारे वर्क कॉन्ट्रैक्ट या बहुत सारे सप्लाई के कॉन्ट्रैक्ट से एग्जीक्यूट नहीं हो पाए, तो यहाँ एक मेजर इशू ये आ रहा है कि व्हाट वुड बी द कॉन्सिक्वेंसेस, कि उसमें किसका घाटा होगा, कौन उस पर डैमेजेस आएगा। कई जगह ऐसे पेरिसेबल आइटम्स होते हैं, अब पेरिसेबल आइटम्स 2 वीक के लॉकडाउन में वो पेरिस हो गया, वो खत्म हो गया, उसकी कोई वैल्यू नहीं रह गई या डेप्रिसिएट कर गई, तो ये सारे डिस्प्यूट्स कैसे हैंडल होंगे, इनको कौन फोरसी किया था, ये जनरल कॉन्ट्रैक्ट के लॉ से गवर्न होंगे या फिर कोई स्पेसिफिक इस एस्पेक्ट पे है, कोई एग्रीमेंट हुआ भी है तो उस एस्पेक्ट को कवर करता है कि नहीं करता है। तो पहला बेसिक चीज है इसमें कॉन्ट्रैक्ट में देन यू हैव टू फोरसी एंड टू फॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंगली। और फिर उसमें डिस्प्यूट्स आता है तो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का भी एक एस्पेक्ट हो जाता है कि आप डिस्प्यूट कोई होता है, आपने सपोज यू हैव डन ए रिटन कॉन्ट्रैक्ट फॉर सप्लाई ऑफ सर्टेन गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्टेन सर्विसेज, and then some disputes comes out because of some reason or other, because the person could not supply the goods or he could not supply in time, he supplied defective goods. So what would be mechanism to resolve that dispute, whether you will be going to the court under to the civil court for adjudication of dispute, or whether you will be having recourse to mediation, conciliation and ultimately arbitration. So decision has to be taken on this. So the person who will be advising a business entity on a company business law related issues should know that how arbitration aspects are dealt with and what clauses should be there, how the clauses should be framed. So dispute resolution is one of the most important aspect, and that is why the lawyers are hired and their services are availed. So keeping in view, unless you are foreseeing that what kind of disputes are there, you will not be in a position to give proper advice to the person. एक तो एस्पेक्ट ये हो गया कि जनरल जब बिजनेस कर रहे हैं तो एक जनरल कॉन्ट्रैक्ट
जनरल कॉन्ट्रैक्ट के लॉ क्या होंगे, सप्लाई क्या होगा, कंडीशंस क्या होंगे, ब्रीच कंडीशन हुआ तो उसके किसको डैमेज देना है, किसको किसको लॉस सफर करना है, ये सारी चीजें वो एक एस्पेक्ट है। सेकंड एस्पेक्ट है कि यदि आप बिजनेस दे रहे हैं, टैक्सेशन का एस्पेक्ट है। थर्ड एस्पेक्ट सर्टेन कंप्लायंसेस के हैं कि आप हर चीज को जैसे डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ सर्विसेज। तो पहला, आप कोई भी सर्विस देते हैं या कभी कुछ भी कोई भी आप वर्क कर रहे हैं और कोई भी गुड्स परचेज कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो देन यू आर लायबल टू पे सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी जिसको आज कह रहे हैं, उसको आपको उस एस्पेक्ट पे देखना होगा कि ये पे करना है गवर्नमेंट को। अब किस स्टेज पे कैसे पे करना है, दिस एस्पेक्ट यू हैव टू बी अवेयर ऑफ कि इसमें गुड्स और सर्विस टैक्स आप लगा के बिलिंग करेंगे। यदि आपने बिलिंग कर दिया तो फिर जो सेकंड पार्टी है उसके आप रिटर्न फाइल करेंगे, उसका वो इनपुट क्रेडिट क्लेम करेगा। इनपुट क्रेडिट क्लेम करने के भी बहुत सारे लीगल एस्पेक्ट्स हैं कि यदि आपने रॉन्गफुली इनपुट क्रेडिट ले लिया जो 5 करोड़ से ऊपर है तो ये नॉन वेलेबल ऑफेंस भी होता है। तो ये बड़े स्ट्रिक्ट लॉ हैं, इनको समझ के आपको क्लाइंट को एडवाइस करनी पड़ेगी कि आप बिजनेस कर रहे हो तो आप गुड्स एंड सर्विस टैक्स के एस्पेक्ट्स को कैसे डील करोगे, इनकम टैक्स के एस्पेक्ट को डील कैसे करोगे, कितना टैक्स उसमें लगता है। तो ये एस्पेक्ट भी आपको उसमें समझने की जरूरत है। तो जब बिजनेस रिलेशन और बिजनेस कंडक्ट ऑफ बिजनेस की जब बात कर रहे हैं तो आपको फर्स्ट एस्पेक्ट हो गया कि जनरल कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स कैसे डिवाइज होंगे और उसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे डिस्प्यूट का। सेकंड एस्पेक्ट हो गया जो टैक्सेशन का एस्पेक्ट है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। उसको यदि अवॉइड करते हैं तो कई बार इतनी सीरियस उसकी लायबिलिटी होती है कि योर पर्सन एंड द पर्सन हु इज कंडक्टिंग द बिजनेस मे लैंड इनटू trouble. He may face criminal prosecution also, and sometimes he may go to jail also if he could not show his bona fide, and if he is found to be so of doing such serious default. अब उसमें एक जो तीसरा जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि बहुत सारे बिजनेस में जैसे आप बहुत सारे बिजनेस के स्टैट्यूटरी रेगुलेशंस भी हैं कि आप इमीडिएटली कोई चीज आप कर नहीं सकते, वो भी आपको समझना होगा कि किस नेचर का बिजनेस कर रहे हैं। बहुत सारे बिजनेस में रेगुलेटरी कंप्लायंसेस की जरूरत है, आपको लाइसेंस लेने जनरली मोस्ट ऑफ द बिजनेस में नहीं है, लेकिन कुछ बिजनेस में सपोज कि आपने ड्रग का मैन्युफैक्चरिंग करने जा रहे हैं, कुछ मेडिसिन बनाने जा रहे हैं। अब मेडिसिन बनाने जा रहे हैं तो इट इज नॉट लाइक दैट यू सेट अप अ फैक्ट्री एंड यू विल स्टार्ट प्रोडक्शन ऑफ द मेडिसिन इमीडिएटली। देयर आर वेरियस रिक्वायरमेंट्स। उसी तरह से पहले जैसे रियल एस्टेट बिजनेस में कुछ भी रेगुलेशन नहीं था, आप अपना एक कंपनी बनाओ, प्रॉपर्टी खरीदो, उसके लैंड यूज चेंज करवाओ, लोकल अथॉरिटी से प्लान सैंक्शन कराओ, उसके बाद बिल्डिंग उन पे बना के मार्केट में बेच दो, कोई आपको कंप्लायंस की जरूरत नहीं थी। जब से रेरा 2016 में आ गया तो उसमें आपको पहले रेरा में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, एस्क्रो अकाउंट खुलाना, इसी तरह के कंप्लायंसेस हर एस्पेक्ट पे है। जैसे आप और भी कोई बिजनेस करना चाह रहे हैं जहां पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करना चाह रहे हैं तो बहुत सारे आपको रजिस्ट्रेशंस कंप्लायंसेस करने पड़ते हैं। और तो ये जैसे आप इसेंशियल सर्विसेज पे डील कर रहे हैं, मान लीजिए कि कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो इसेंशियल सर्विसेज है तो उसमें होर्डिंग की आपको स्टोरेज की कितनी लिमिट परमिटेड है, उसमें आप उससे ज्यादा एक्सीड कर गए तो आपको उसमें लीगल पेनल एक्शन आप हो सकता है। तो ये सारे कंप्लायंसेस की जानकारी रखना कि कौन सा लॉ ऑपरेट करता है, उसके रूल्स क्या हैं, और उन रूल्स पे रूल्स का कंप्लायंस कैसे होगा ये समझना इंपॉर्टेंट होता है। सो व्हेन यू आर गोइंग टू बी अ बिजनेस लॉयर देन यू शुड नो ऑल दीज थिंग्स परफेक्टली व्हाइल एडवाइजिंग योर क्लाइंट इन प्रोसेस ऑफ कंडक्ट ऑफ हिज बिजनेस। सो एक
अब नेक्स्ट एस्पेक्ट ये है कि बिजनेस के लिए एक तो आपके पास जो एक कंप्लीट लॉ है अपने आप में कि जब आप बिजनेस करने जाते हैं तो देन यू नीड फंड, यू नीड अ लॉट ऑफ फंड। सपोज आप अपना पैसा 1 करोड़ रुपया है किसी के पास, वो 1 करोड़ रुपया लगाता है और उसको बिजनेस में रिक्वायरमेंट है एक बहुत ज्यादा पैसे की और ही कैन मेक प्रॉफिट आउट ऑफ इट इफ ही गेट्स अ लॉट ऑफ फंड एंड रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ द फंड। तो उसमें से फाइनेंस एक्वायर करने का, फाइनेंस लेने के जो जो प्रोसेस है और उसके उसको रीपे नहीं कर पाने के जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो भी आपको समझना होगा। ये भी बिजनेस लॉ का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। सपोज कोई 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 कंपनी है और बिजनेस कर रही है, उसको लगता है कि मेरे पास आज के डेट में 1 करोड़ का फंड है, इससे मैं 5 लाख का प्रॉफिट कमा रहा हूँ, लेकिन मेरे पास ऑर्डर इतने आए हुए हैं कि मैं 10 करोड़ का सामान बना के उसको बेच दूं, 3 महीने मैन्युफैक्चरिंग टाइम लगेगा, उसको सप्लाई प्रोसेसिंग में 2 महीने, 5-6 महीने में मैं इसका ऑर्डर पूरा कर दूंगा और मुझे 10 करोड़ रुपए है नहीं मेरे पास, तो मैं बैंक के पास आते हैं, उसको एसेट्स प्लेस कर सकते हैं, बैंक से 10 करोड़ का फाइनेंस ले लेते हैं और वो कंप्लायंस कर देते हैं, उसके बाद पे कर देते हैं अपने कन्वीनियंट टाइम पे। तो एक बिजनेस में ये भी एक लॉ है जहां पे आप अपने क्लाइंट को हेल्प कर सकते हैं, फाइनेंस गाइड कर सकते हैं कि फाइनेंस जब प्रोक्योर करने जा रहे हैं तो उसमें क्या कंप्लायंसेस हैं। तो एक लोन तो एक एस्पेक्ट है, लोन भी कई तरह से ले सकते हैं आप, एनबीएफसी से ले सकते हैं, बैंक से ले सकते हैं, एनबीएफसी से ले सकते हैं, प्राइवेट फाइनेंसिंग से ले सकते हैं। इन केस ऑफ कंपनी जिसकी अच्छी स्ट्रेंथ है वो स्टॉक लिस्ट करा के स्टॉक से, पब्लिक से फंड ले सकती है। जैसे आप शेयर मार्केट में पैसे देखते होंगे कि शेयर ट्रेडिंग जो हो रही है, तो उसमें क्या होता है कि कोई कंपनी जिसकी स्ट्रेंथ बड़ी हो गई है तो they come up with an IPO, इनिशियल प्रमोशनल ऑफर, उसके थ्रू आईपीओ के थ्रू वो क्या करते हैं कि पब्लिक से फंड जनरेट कर लेते हैं, वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट के रूप में कंपनी के पास आ जाता है और उससे उनका फंड का कंप्लायंस हो जाता है। तो इस तरह के ये फंड जनरेशन से भी रिलेटेड एक बहुत एक लीगल एस्पेक्ट है, उसको भी आपको समझने की जरूरत है। अब उसके डिफॉल्ट के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? डिफॉल्ट के कॉन्सिक्वेंसेस हैं कि मान लीजिए सिक्योर्ड एसेट है तो बैंक सरफेसी में उसको अटैच कर सकता है, तो सरफेसी एक्ट का पूरा आपको लॉ समझने की जरूरत है। फिर अब लास्ट एस्पेक्ट में बता रहा हूँ कि लास्ट एस्पेक्ट है कि इनकेस जो कि आपको एक बेसिक जानकारी उसकी भी रखनी पड़ेगी कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मान लीजिए आपका बिजनेस किसी कारण से आपकी इच्छा है कि यू वांट टू क्लोज योर बिजनेस, देन हाउ टू क्लोज दैट। इंडिविजुअल में क्या है कि इंडिविजुअल ने तो अपना बिजनेस करना बंद कर दिया और नया ऑर्डर लेना बंद कर दिया, धीरे धीरे डाइल्यूट हो गया। लेकिन जब आपने एलएलपी बनाया हुआ है, पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन का एक पूरा लॉ है, यदि आपने पार्टनरशिप किया हुआ है तो दोनों पार्टनर्स के अकाउंट्स को कैसे डील कर सकते हैं, कैसे सेटल करना है, या किसी पार्टनर की डेथ हो गई तो उसके जगह पे आप कैसे दूसरे पार्टनर को इंडक्ट करना है, तो ये एक एस्पेक्ट है। सिमिलरली कंपनी एलएलपी में क्या है कि उसका कैसे डिसोल्यूशन होगा इन केस आप बिजनेस नहीं करना चाहते, क्लोज नहीं करना चाहते, तो उसके भी अलग कॉन्सिक्वेंसेस है। या आप डिफॉल्ट करते हैं तो दूसरा जो जिसका डेट है, जिसका आपके अगेंस्ट क्लेम है, व्हाट एक्शन ही कैन टेक एंड what would be its consequence, that you should also understand. तो इन एस्पेक्ट्स को ब्रॉडली मेरे हिसाब से आप यदि समझने की कोशिश करेंगे तो ब्रीफली भी इन एस्पेक्ट्स को आप देख लेंगे तो आपको एक जनरल बिजनेस लॉ की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। मेरे हिसाब से बिजनेस लॉ से रिलेटेड कुछ और एस्पेक्ट्स हैं जिनको आप खुद भी समझ सकते हो। बहुत सारे जैसे प्रमोशनल लॉ है, बहुत सारे छोटे छोटे कंपनियां या नए स्टार्टअप हैं या
MSME सेक्टर्स हैं, उसके लिए MSME एक्ट है, उसके अंदर कैसे उसका सर्टिफिकेशन कर सकते हैं, गवर्नमेंट से क्या बेनिफिट मिल सकता है, तो उसके बारे में भी आपको इंफॉर्मेशन रखेंगे। तो MSME का सर्टिफिकेशन का क्या इफेक्ट है, यदि MSME है, कोई सप्लाई किया है, उसमें कोई डिस्प्यूट होता है, कोई उसको पैसे नहीं देता है, MSME के वर्क ऑर्डर एग्जीक्यूशन के बाद या उसके क्लेम्स को रिटेन करता है, तो आप उसको कैसे, तो उसके लिए भी एक रेजोल्यूशन का प्रोसेस है। MSME ने अपना एक आर्बिट्रल सेटअप बनाया हुआ है, उसमें आप जा सकते हैं। उसमें इंटरेस्ट का ज्यादा है, 3 टाइम्स जो नेचुरल मार्केट रेट इंटरेस्ट है उससे मिलता है। तो ये बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। तो मेरे हिसाब से आई हैव एक्सप्लेन्ड यू द broadly what is the business law and how and which aspect you should be taking care of while trying to be a good business lawyer. Now I think Okay, thank you very sir. Student, if you have any doubt, you can ask. I'm just opening the mic of the participants. Yes, participant, you can ask the question from the Rakesh sir, if having any doubt. किसी को कोई क्वेरी है, कोई जनरल भी कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। कोई भी मन में कोई ऐसा भी जो जनरल सा सवाल आता है, एक साधारण आदमी जो पूछता है, यदि बिजनेस में करने जाएंगे, इफ यू विल बी गोइंग टू, आप किसी को एडवाइस करने जाओगे तो पहली बार जो बिजनेस करने वाला आएगा वो लॉ नहीं जानता, तो एक जनरल सा सवाल पूछता है, तो उस तरह के भी सवाल आप पूछ सकते हो। देन वी कैन हैंडल दैट क्वेश्चन। ठीक है, बंद करें सुधाकर जी। I think nobody has any doubt about it. Student, you can after clarify your doubts if you are having any regarding the sir has given the well-drafted lecture on the business law. He has covered the industrial dispute act, then compensation, ESIA. If you are having doubt on this part or many more, you can ask. Okay, sir. My question is that what is the role of MSME in opening the business? How the MSME is helping? So MSME, basically MSME is there because the government is giving certain incentive and certain benefit which it is not giving to general company. They are giving only to promote new entrepreneurs. So they are giving certain benefit to MSME sectors only. So far as identity is concerned, MSME is not different. They can fit into only these 4 category of business enterprises entity. So any of these business entity can be an MSME.
वो MSME का उसका सर्टिफिकेशन लेना होता है। आप उस पे MSME मिनिस्ट्री पे जाके आप उनको रजिस्टर कराएंगे, and then that is decided on the basis of your turnover, when you have established your entity, what you are doing, certain sectors। तो उसमें गवर्नमेंट के बहुत सारे प्रिविलेजेस मिलते हैं। सर्टेन फिर उस MSMEs के जैसे MSMEs के फंड्स हैं, किसी को सर्विस दिया, उसको वो पेमेंट वापस नहीं कर रहा है या उसका पेमेंट नहीं आ रहा है, तो देन दे हैव प्रोवाइडेड ए डिफरेंट मैकेनिज्म टू डील विद। वो कोर्ट में ना जाके MSME के आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल के थ्रू चला जाता है, जहां पे क्विकर डिस्पोजल है। तो MSME अपने आप में एक अलग से कोई लीगल एंटिटी नहीं है, लीगल एंटिटी का ही एक अलग से स्टेटस आप ले सकते हैं। Okay. Any student having doubt or you having any question, you can ask to our learned speaker. But I think they have understood it. Okay. Thank you very much for a student being a patience listener, and thank you very much to our Rakesh sir for giving a wonderful lecture on this topic, how to develop the business law for lifting the researcher, entrepreneur, innovators, and thank you to the college for organizing this wonderful session on this particular occasion. Okay, thank you very much, all of you.